آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ پاکستان سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے تبادلہ خیال ہوا۔ بل گیٹس نے پولیو مہم کی حمایت اور مناسب رسائی کرنے پر پاک فوج کے کردار کی تعریف کی ہے۔ آرمی چیف نے بل گیٹس اور ان کی فاؤنڈیشن کے نیک مقصد کے لیے کوششوں کو سراہا۔ آرمی چیف نے بل گیٹس کو پولیو سے پاکستان کے لیے مکمل تعاون جاری رکھنے کا یقین دلایا۔ مزید جان لیں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد محمد عمران سے۔ عمران بتائیے گا ٹیلی فونک گفتگو بارے۔ جی بالکل، یہ ٹیلی فونک گفتگو جس میں جو بنیادی موضوع گفتگو تھا وہ پاکستان سے پولیو خاتمے کے حوالے سے جو پاک فوج کی کوششیں ہیں مسلسل جو اس حوالے سے جاری ہیں اس کے اوپر بات کی۔ بل گیٹس نے پاکستان آرمی کی جو پولیو کے خاتمے کے حوالے سے جو پاکستان آرمی کی کوششیں ان کو سراہا، اور آرمی چیف نے بھی جو بل گیٹس فاؤنڈیشن ہے اس کی جو کوششیں ہیں پولیو کے خاتمے کے حوالے سے ان کو سراہا، اور ان کے جو کام ہیں اس کے بھی خراج تحسین جو ہے وہ پیش کیا، اور آرمی چیف نے بھی اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پولیو کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ ہر سطح پر کوششیں جو ہیں وہ مسلسل جاری رکھی جائیں۔ بہت شکریہ آپ کا محمد عمران اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان قوم کو تقسیم کر رہے ہیں، انہیں نہ روکا تو قوم حادثے کا شکار ہو سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد اب کوئی شک نہیں رہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرونی ایجنٹ ہیں۔ ایف آئی اے انکوائری کے بعد مقدمات درج، گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ اسلام آباد احتجاج میں دھونس بد امنی پر 25 مئی سے زیادہ برا حشر کریں گے۔ جنہوں نے یہ ٹرینڈ چلائے یہ لوگ گمراہی کا شکار ہیں۔ یہ شخص جو پی ٹی آئی کا سربراہ ہے یہ قوم کو تقسیم کر رہا ہے، قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اگر قوم نے اس کا ادراک نہ کیا کہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا، وہ ٹرینڈ چلایا گیا یا جس کی میں سمجھتا ہوں کہ اب تو اس کا کلا کما ہو چکا ہے۔ افغانستان نے آج تک یہ الزام نہیں لگایا پاکستان کے اوپر کہ جی وہاں سے جو ہے وہ ڈرون چلا ہے یا چلا ہے۔ یہ بدبخت جو ہے یہ الزام بھی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر لگا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد کوئی شک نہیں رہا کہ عمران خان جو ہے یہ فورن ایجنٹ ہے۔ دے رہے ہو کہ الیکشن کراؤ، تو پہلے چیف الیکشن کمیشنر کو تو جو ہے وہ ہٹا لو، تو اس کے بعد پھر آئیں بات کریں۔ پھر اس کے بعد اسمبلیاں دونوں توڑیں، پنجاب اسمبلی توڑیں، کے پی کے اسمبلی توڑیں، جو استعفے دیے ہیں وہ ایکسیپٹ کرائیں، اس کے بعد پھر الٹیمیٹم دیں۔ ورنہ اس طرح کا الٹیمیٹم جو ہے یہ آپ کی 2 نمبری ہے۔ پرامن جلسہ، پرامن احتجاج جو ہے وہ بالکل آپ کو جو ہے وہ اجازت ہے۔ اگر آپ نے کوئی دھونس، کوئی دھاندلی، کوئی دھمکی، کوئی بلیک میلنگ کا راستہ اپنایا تو 25 مئی سے زیادہ جو ہے نا برا حشر جو ہے وہ آپ کا ہوگا، اور اس مقصد کے لیے ہماری پوری تیاری ہے۔ ٹی ایل پی کے متعلق مجھے معلوم یہ پڑا ہے کہ وہ فیض آباد چوک میں جلسہ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ جلسہ جو ہے وہ کریں وہاں پہ لیاقت باغ میں کر لیں، یا اسلام آباد میں 2 جگہ ہیں، ایک H9 وہ جگہ جو ہے گراؤنڈ جو ہے، اور دوسرا پریڈ گراؤنڈ۔ ٹی ایل پی بھی جلسہ کرے، پی ٹی آئی بھی کرے، اور بھی کوئی کرنا چاہتا ہے۔ فواد چودھری اور اسد عمر نے کہا ہے کہ حمزہ شہباز کو لندن فرار کرا دیا گیا۔ 2 کروڑ روپے کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کی 5 ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ فواد چودھری نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ 24 ارب روپے کے ملزم حمزہ شہباز کو لندن فرار کرا دیا گیا، لیکن 2 کروڑ روپے کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کی 5 ٹیمیں بنا دی گئیں۔ کیا شہباز شریف اینڈ کمپنی قوم کو بیوقوف سمجھتی ہے؟ اسد عمر نے بھی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ 24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا ملزم حمزہ شہباز لندن میں مزے کر رہا ہے، اور تحریک انصاف کے دفتر میں کام کرنے والے ملازمین کو ایف آئی اے بلا کر سوال جواب کر رہی ہے۔ فیصل آباد میں محرم الحرام کی مناسبت سے مرکزی جلوس امام بارگاہ حیدریہ سے برآمد ہوا۔ فیصل آباد انتظامیہ کی جانب سے جلوس کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ قمر ارشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی قمر بتائیے گا۔
हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद में 9वें मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से जुलूस जो है वो अमीरपुर बाज़ार में वाक़या इमाम बारगाह हैदरिया से बरामद किया गया, जिसमें शबीह जुलजना और अलम जो है वो बरामद किया गया। जुलूस में अज़ादारान जो है वो भी कसीर तादाद में शरीक हुए। जुलूस में मातमीन जो हैं, अज़ादारान जो हैं वो मातम का पुरसा दे रहे हैं, साथ साथ नोहा खानी जो है वो की जा रही है। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह अज़ा खाना शब्बीर में इख्तिताम पजीर होगा। अगर बात की जाए जुलूस की सिक्योरिटी की, तो फैसलाबाद पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। पुलिस के 3000 एहलकार और अफसरान जो हैं वो यहाँ ड्यूटी पर मामूर हैं और जुलूस के सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। उसके साथ साथ एलीट फोर्स की 10 टीमें तश्कील दी गई हैं जो कि यहाँ पर ड्यूटी पर मामूर हैं। अगर सारा दिन की बात की जाए तो ज़िला भर में 138 मजालिस और 93 जुलूस जो है उनका इनाकाद किया गया, जिन्हें पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो मुहैया की गई थी। बुलंदो बाला इमारात पर शार्प शूटर्स जो है वो भी तैनात किए गए हैं और जुलूस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अमीनपुर बाज़ार से घंटाघर चौक से चनेौट बाज़ार गोल से होता हुआ वापस अमीनपुर बाज़ार में आकर नड़वाला चौक से होता हुआ इमाम बारगाह अज़ा खाना शबीर में इख्तिताम पजीर होगा। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि चंद इस्तीफों की मंजूरी हुकूमत की सियासी चाल है। इस्तीफों की मंजूरी में इम्तियाजी सुलूक नहीं किया जा सकता। इमरान खान ने 9 हलकों में फस्तायत का मुकाबला करने का ऐलान किया। इमरान खान ने दुरुस्त कहा, हर दौर में यजीद होता है। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान साहब ने दुरुस्त कहा, हर दौर का एक वजीर होता है और उस वक्त के यजीद के सामने हक का अलम बुलंद करना, इसे हुसैनियत कहते हैं। वाह। तो इमरान खान ने बिल्कुल उस हुसैनी जज्बे को सामने रखते हुए कहा है कि वो वक्त के यजीदों का मुकाबला करेंगे जो लोगों के हकूक़ सलब कर रही हैं, जो इस कौम को जकड़े हुए हैं। तमाम मेंबरान ने बैक वक्त मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया था और अपने इस्तीफ़े डिप्टी स्पीकर जो चेयर कर रहे थे कासिम सूरी साहब उनको पहुँचाए और उन्होंने आगे पास ऑन कर दिए थे इलेक्शन कमीशन को। अब ये सिलेक्ट करना चंद हलकों को मैं समझता हूँ बदनीयती है, ये इनका एक सियासी उनकी चाल है और उसके ख़िलाफ़ हम कानूनी चाराजोई करने के लिए हम मैदान में हैं और सियासी तौर पे भी उनका मुकाबला करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर हमारी कोशिश के बावजूद इलेक्शन कमीशन अपनी हक धर्मी में कायम रहता है तो इंशाअल्लाह वो 9 के 9 हलकों में खुद इस फस्तायत का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने वालों को ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी बताएं कि उनकी साहबजादी असम्बली जाएंगी। उन्होंने कहा कि एक शख्स का 9 सीटों पर इंतखाब लड़ना मुमकिन नहीं। निगरान सेटअप मईशत नहीं संभाल सकता। मुल्क चलाने के लिए आइन के मुताबिक अमल करना होगा। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 9 सीटों पर इंतखाब पॉसिबल है, जो खुद पहले मुस्तफ़ी हो चुके हैं और शाह महमूद साहब खुद मुस्तफ़ी हो चुके हैं और असम्बली में वो नहीं जाते, तो अगर अपनी साहबजादी को वो इंतखाब में उतार रहे हैं तो क्या वो असम्बली का हल्फ लेंगी? क्या वो जाकर असम्बली में बैठेंगी? तो मैं तो इसलिए कह रहा था कि उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है आवाम को, तो आवाम उसको वोट करेगी जो उनकी नुमाइंदगी असम्बली में जाकर करेंगे। माशी हालत को बेहतर करने के लिए आपको हुकूमत चाहिए, केयर टेकर सेटअप नहीं चाहिए। केयर टेकर सेटअप में वो सारे फैसले वो नहीं कर सकते, वो सिर्फ रूटीन का काम कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। हम मुश्किल फ़ैसले करने का मकसद ये नहीं कि हम अनपॉपुलर होंगे, हमारा मकसद है कि मुल्क को बचाना है, अपने आप को नहीं बचाना। आइन को कानून के मुताबिक काम होंगे तो मुल्क मजबूत होगा और हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। और मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए जो बहुत सवाल मुझसे पूछते हैं, मैंने कभी उनका जवाब। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि सियासी जमातों के दरमियान शदीद टकराव की कैफियत पैदा हो गई है। सूबे और मरकज़ आमने सामने आ गए हैं। माइनस और प्लस का फैसला ज़मीनी खुदाओं ने नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने करना है।
शेख रशीद का मजीद कहना था कि गैर यकीनी सियासी और मौशी हालात सबके चिराग बुझा सकते हैं। हुक्मरान जमातों ने अपने केस सामने रखकर नैब में तरमीम की। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ही एतबार नहीं तो इमरान खान इलेक्शन को कैसे तस्लीम करेंगे। एहतसाब और जजेस की तकर्री अगर करप्शन ज़दा लोग करेंगे तो जेलें गरीबों के लिए और अशराफिया के लिए 5 स्टार होटल होंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा है उस्मान बुज़दार की करप्शन के हवाले से 3 बार इमरान खान को बताया मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ इमरान खान के कहने पर झूठा मुकदमा बनाया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान खान चेयरमैनशिप से इस्तीफा दें, वो फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 3 दफ़ा मैंने ये खान साहब को बात की लेकिन वो टस से मस नहीं हुए क्योंकि वो खुद इसमें मुलव्वस थे। वो मुकदमा जो दर्ज कराया गया राना सनाउल्लाह पर, वो मुकदमा इमरान खान की अमा पर दर्ज किया गया। जो इंडिया और इसराइल से आदमी पैसे लेता है आप खुद अंदाज़ा लगा लें वो पाकिस्तान का कितना मुहब्बे वतन हो सकता है। मैं यहाँ पे मुतालबा करता हूँ कि इंडिया और इसराइल से पैसे लेने पर और अरबों रुपए की करप्शन करने पर फॉरेन फंडिंग में इमरान खान चेयरमैन तरीक़े इंसाफ के ओहदे से फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें। इमरान खान साहब ने जो 2 चेहरे हैं इस शख्स के, एक चेहरा इस्लामी टच वाला है और दूसरा चेहरा है पाकिस्तान को तोड़ने वाला, पाकिस्तान के नौजवानों को गुमराह करने वाला। मुल्क के लिए फितना है, एक फसाद है और नौजवानों को गुमराह कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इस फितने और फसाद से इस मुल्क को बचना चाहिए। फारूक हबीब ने कहा है कि राजा रियाज जैसे ज़मीर फरोशों की सियासत अंजाम को पहुंच चुकी। पैसे लेकर ज़मीर फरोख्त करने वाले बेशरम को इदारों की तर्जुमानी का क्या हक हासिल है। फारूक हबीब ने अपने बयान में कहा है राजा रियाज करप्ट तरीन ख़ानदान की ग़ुलामी कबूल करके जमहूरी होने का नाकाम तासुर दे रहे हैं। चोरों के झुरमुट में बैठकर नौजवानों पर तनकीद करने वालों के अज़ाइम से कौम बाखूबी वाकिफ़ है। फारूक हबीब ने राजा रियाज को मशवरा दिया कि किसी इंतखाबी हल्के का रुख मत करें, अवाम में निकलने की देर है। अवाम इस बेज़मीर लोटे को इसकी असल औकात याद दिला देंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत की इमरान खान या PTI को दीवार से लगाने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद से ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने मुलाकात की। साबिक वज़ीर ने इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। यास्मीन राशिद ने इस मौके पर कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया बना दिया। ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब की आवाम ने इमरान खान के मजबूत बयाने की वजह से तहरीक इंसाफ को जितवाया। नाअहल वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तानी कौम को बदतरीन महंगाई के अलावा और कुछ नहीं दिया। अवाम नाअहल हुकूमत से फौरी छुटकारा चाहते हैं। MQM पाकिस्तान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध बल्दियाती एक्ट से मुताल्लिक वादा वफा नहीं किया। राबता कमेटी ने वज़ीर आज़म से किरदार अदा करने की अपील कर दी। कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सदारत में MQM की राबता कमेटी का इजलास हुआ। राबता कमेटी का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के बल्दियाती एक्ट को आर्टिकल 140A के मुताबिक तैयार करने का वादा किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरक्स सिंध में हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन के बजाय सूबाई हुकूमत ने खुद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस नाजुक सूरत हाल में अपना किरदार अदा करें। राबता कमेटी ने हालिया बारिशों और सैलाब से जानी और माली नुकसानात के अजाले का भी मुतालबा कर दिया।